Today we are going to learn Geography of Class 8 from Meghalaya Board of School Education syllabus. So I hope by now you understood what is natural resources. Now let us discuss natural resources based on origin. There are two types of resources based on origin. The first one is biotic resources. So biotic resources are the living things, the things which have life in it. For example, plants, animals, human beings, birds, whatever has got life in it is called biotic resources, the living things. For example, plants, animals, birds, human beings. So here in this picture you can see all the living things, crops, trees, all these things are biotic resources. The second type is abiotic resources. Now what are abiotic resources? These are the non-living things such as land, water, air, minerals, etc. are called abiotic resources. So all these things we get from nature, that's why it is called natural resources. But these are non-living things that we get from nature. Here you get water, then air, then minerals also, minerals, coal, koila, then diamonds, gold, and then sunlight. All these are non-living things. So these are called abiotic resources. Next we are going to learn natural resources based on development. So based on development, as we have seen earlier, there are two types again. The first is actual resources. What are actual resources? Resources whose quantity is known and which are being used by men at present are called actual resources. For example, the coal reserve in Jharkhand, water in the Ganges river. तो एक्चुअल रिसोर्सेस क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जिनकी क्वांटिटी हमें पता रहती है और जिन रिसोर्सेस को हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं. जैसे कि कोल रिजर्व जो है झारखंड में, वहां का कोयला हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और हमें पता है कि अभी उस कोल रिजर्व में कितना कोयला अभी बाकी है. तो हमें इसकी क्वांटिटी के बारे में, एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में पता है. देन गेंजेस रिवर मतलब गंगा नदी जो है हमारी, तो वहां पे वो जो उसका जो पानी है हम अभी यूज कर रहे हैं. At present, we are using the water of the river Ganga and we know how much water is still there in river Ganga. So actual resources में पहला पॉइंट क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी हमें पता हो and जो हम वर्तमान में, प्रेजेंट में जो हम यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेस. तो पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या होती है? रिसोर्सेस whose actual quantity is not known and which are not being used by us at present are known as potential resource. Potential resources वो सारी resources हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है.
और जो हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे हैं, मगर we might use it in the future. तो पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं उनमें पोटेंशियल होते हैं, मतलब कि उनमें काबिलियत होती है कि वो फ्यूचर में वो सारी चीजें हमारे लिए यूजफुल बन सकती है, तो इसलिए उनको बोलते हैं कि वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमें दिखाई दे रही है। पहला, जिसकी एक्चुअल क्वांटिटी हम नहीं जानते क्योंकि हम वो यूज नहीं कर रहे हैं, और दूसरा, हम प्रेजेंट में वो सारे रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे हैं, मगर we will be using or we might use it in the future. For example, the uranium reserve in Ladakh. लद्दाख में जो यूरेनियम का रिजर्व है वो प्रेजेंट में यूज नहीं किया जा रहा है, पर फ्यूचर में वो एक पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में उभर सकता है। तो इसलिए the uranium reserve in Ladakh is an example of potential resource. Next is natural resources based on renewability. Renew का मतलब है रीजनरेट करना, मतलब फिर से उसको जनरेट करना। जैसे कुछ खत्म हो गया, कोई भी रिसोर्स खत्म हो गया, उसको फिर से रीजनरेट होना। तो बेस्ड ऑन renewability we have got 2 types of resources. The first one is renewable resources. Renewable resources which have the ability to reproduce, replenish or renew quickly are called renewable resources. तो renewable resources वो resources हैं, वो सारी चीजें हैं जो खत्म होने पर या जब खत्म होने को होती है तब वो अपने आप को बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर रिन्यू कर सकती है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। तो सोलर एनर्जी जो हमें सूरज से मिलती है, वो जब एनर्जी जब खत्म होने को होती है तो फिर से दोबारा हमें वो एनर्जी सूरज से मिल जाती है, वो जल्दी रिन्यू हो जाती है। विंड एनर्जी भी वैसे ही रिन्यू होती है। फिर पानी, देन सॉइल, फॉरेस्ट, ऑल दीज थिंग्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल के रूप में हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, लिविंग बींग्स को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो जिनमें जान होती है, वो अपने आप को रिन्यू कर सकती है। अभी ह्यूमन बींग्स अभी एक जनरेशन है, नेक्स्ट फिर नया जनरेशन आएगा। द सेम वैसे ही एनिमल्स, बर्ड्स, जो लिविंग बींग्स हैं, वो सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और फिर उसके साथ ही सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट को भी हम रिन्यूएबल रिसोर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The non-renewable resources are those resources which cannot reproduce themselves or may take thousands of years to reproduce themselves. So non-renewable resources, जैसे कि इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर
अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में उनको हजारों साल लग सकते हैं, जैसे कि कोयला, कोल या फिर पेट्रोलियम या फिर डीजल। ये सारी चीजें जब खत्म होती है या खत्म होने को होती है, तब इनको दोबारा से बनने के लिए हजारों साल लगते हैं। इसलिए ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, we have to use these resources very carefully, because if we finish all these resources, all these non renewable resources, it will take a very very long time to get themselves renewed. Next is natural resources based on development. So based on development, there are two types of resources again. The first one is ubiquitous resources. What are these? Those resources which are found almost everywhere on earth are called ubiquitous resources. तो वो सारे रिसोर्सेज जो हमें सारी जगह पे, हर जगह पे मिलती है, उन सारे रिसोर्सेज को यूबिक्विटस रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? एयर, वाटर, देन सनलाइट, देन लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। Those resources which are not found everywhere are called localized resources. तो localized resources means कि those resources which we found in particular places, not everywhere. Like coal, iron, copper. कोल हर जगह पे नहीं मिलता है, हर दुनिया में हर जगह पे कोयला नहीं मिलता है, किसी किसी जगह में मिलता है। सिमिलरली आयरन, कॉपर कुछ जगहों में ही मिलते हैं। सो इनको बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेस हमें हर जगह पे मिलती है, हवा, पानी, फिर सूरज की रोशनी। और लोकलाइज्ड रिसोर्स कुछ ही जगहों में मिलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। इस टर्म से ही आपको पता चल रहा होगा, ह्यूमन मेड मतलब कि जो रिसोर्सेस ह्यूमन बनाते हैं उनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेस बोलते हैं। Many natural resources can be made useful only after being modified with technology. These resources which are created by human are called human made resources. तो जो resources दुनिया में कुछ ऐसे resources हैं जिनको modify किए बिना या फिर उनमें changes लाए बिना हम यूज नहीं कर सकते। उन चीजों को ही जो ह्यूमन बनाते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, उन रिसोर्सेस को ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन फ्रॉम आयरन ओर। तो यहाँ पे जो पिक्चर है नीचे आप देख सकते हैं, आयरन ओर जो हमें जमीन के नीचे मिलती है वो देखने में कैसी है, और जब उसको मॉडिफाई करते हैं इंसान, जब उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉडिफाई करते हैं तो ये लोहे का रॉड बनता है जो हम
जिससे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वुड, जो हम पेड़ काटने से जो वुड मिलता है वो, सो फ्रॉम वुड वी मेक फर्नीचर्स। सो वुड इज अ natural resource or furniture is a human made resource. We get wood from the nature, we get furniture through humans. That means humans make these resources. Next is buildings. Buildings are being made by whom? By the humans. Next is roads. These are also being made by humans. Next is bridges. These are also being made by humans. So now you think on the examples of some more human-made resources. We have got pen, pencil, books, tables, chairs, fridge, then houses. All these things which are being made by human are called human-made resources.